Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start next passage of the lesson Deep Water. Yesterday I discussed that how William Douglas was stuck in the water in the pool, and he was trying his best to come out from the pool, but he was not success at that time. But the jump made no difference. In water was still around me. I looked for ropes, ladders, water, wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. Like a great charge electricity, I shook and trembled with fright. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call and help, but to call for mother, nothing happened. William Douglas is saying that, but the jump, when he made the jump, great jump, but there was no difference. He was stuck on the water. The water was around him, and he was stuck in the pool. William Douglas walked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट कि उसको कोई रोप मिल जाए. लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, एंड विंग्स मीन्स होता है जिनको लेकर वो उस पर जाता था तैरने. बट ओनली ही वॉज वॉचिंग वाटर, अ मास ऑफ येलो वाटर. ही वॉज ओनली एबल टू सी द mass of yellow water held him, and dark stark terror means he was terror means he was frightened. Look, and even deeper dark water. The water was deep and there was darkness around William Douglas. Hold on him, or like a great charge electricity. William Douglas shook and trembled with fright. He was shaking with fright. डर से डर कांप रहा था. His arms would not move. उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे. His legs would not move. उसके पाँव काम नहीं कर रहे थे. He tried to call to help. उसने कोशिश की किसी को कॉल करने की, अपनी माँ को कॉल कर रहा है. But there was no happen. Nobody was there and nobody listened to him. And when strangely there was light. अचानक लाइट सी दिखी. I was coming out of the awful yellow water. से मैं बाहर निकला. कैसे? At last my eyes were my nose was almost out to दिख रहा है. मेरी नाक मुंह पानी से भरा है. Then I started down a third time. और जैसे मुंह पर निकला, लेकिन फिर तीसरी बार जब उसने जंप मारने की कोशिश की, वो थोड़ा ऊपर आया लेकिन पानी से बाहर निकला. फिर वो प्रयास भी क्या रहा, सक्सेस नहीं रहा. फिर वो नीचे बॉटम की तरफ जा रहा है. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम विलियम डगलस वॉज गोइंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द पूल. आई शक्ड फॉर एयर एंड गो वाटर. ही सक्ड एयर एंड गो वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. Then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limbs, and a blackness swept over my body. He was near about hopeless. वो hopeless हो गया था. और he relaxed, even his legs felt limbs. उसके जो limp उसके जो legs थे वो अब क्या हो गए, weak हो गए, कमज़ोर हो गए. And a blackness swept over my brain. William Douglas is saying that blackness was swept over his brain. उसका जो ब्रेन में था वो भी उसमें थोड़ा ब्लैकनेस छाने लगी, अंधेरा छाने लगा. इट वाइप्ड आउट फियर, और इससे उसका डर और बढ़ गया. इट वाइप्ड आउट टेरर, उसका आतंक और बढ़ गया उसको. और दियर कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जब उसके उस माइंड में अंधेरा छाने लगा, इट वाइप्ड आउट फियर, तो वो थोड़ा, क्योंकि जब अंधेरा छाने लगा तो उसको कुछ पता नहीं चलने लगा, तो वो उसका डर थोड़ा हट गया और उसका जो टेरर था वो भी कम हो गया. देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब नाउ विलियम डगलस वॉज नॉट बिकेम सो मोर पैनिक. अब वो ज़्यादा पैनिक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि नाउ ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, वो थक गया था. एंड ही ऑल्सो लेफ्ट द होप ऑफ कम आउट फ्रॉम द पूल. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस. इट वॉज क्वाइट, ये बिल्कुल क्वाइट मीन्स बिल्कुल जिसे हम कहते हैं शांत, एंड पीसफुल. अब उसने
चुप हो गया, वो शांत हो गया। पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उसको किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं रही। दिस इज़ नाइस, ये बहुत सही है। टू बी ड्रॉसी, उसको ड्रॉसी मीन्स नींद आने लगी, झपकी आने लग गई, थक गया। टू गो टू स्लीप, और नो नीड टू जंप, अब उसको जंप करने की आवश्यकता नहीं रही। टू टायर्ड, वो थक गया था। टू जंप, और इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. And in this situation, William Douglas was totally exhausted, and he left his legs and arms freely. And now he is saying that he was tender arms, his arms was tender, his legs was tender, and he was terrorless, he was fretless, and he was feeling that he is in the lap of his mother, tender arms like mothers, and now he must go to sleep. और वो क्या कर रहा है, सोने जा रहा है। किसके अंदर, पूल के अंदर। बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम द पूल। आई क्रॉस टू ऑब्लिशन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। इट इज़ क्लियर दैट वो ही वॉज फीलिंग दैट कि द कर्टेन ऑफ विलियम डगलस इज फीलिंग दैट द कर्टेन ऑफ हिज लाइफ फेल, अब उसके जीवन का पर्दा गिरने वाला। इट मीन्स हिज डेथ इज अप्रोचिंग टू हिम, उसकी मौत उसके नज़दीक पहुंच रही है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बेस बिसाइड द पूल। उसी नेक्स्ट क्षण क्या हुआ, द नेक्स्ट मोमेंट विलियम डगलस से सेइंग दैट आई रिमेंबर, मुझे याद आता, आई वॉज, मैंने देखा, लाइंग टू ऑन माई स्टोमक बेस, तो मैं पूल के किनारे पड़ा हूँ और मेरा पेट क्या है, पेट के बल में लेटा हूँ। बिसाइड द पूल, पूल के नज़दीक में। वॉमिटिंग मीन्स मैं वॉमिटिंग उल्टी कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस चैप मीन्स होता है बॉय, BOY, जिस लड़के ने मुझे उठा करके उस पूल में डाला था, वो कह रहा है बट आई वॉज ओनली वॉमिटिंग, लेकिन कह रहा है मैं केवल क्या करता, फूलिंग, उसमें कह रहा है कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड, मैं नीचे बिल्कुल लेटा हुआ था। किसी ने कहा द किड नियरली डाई, कह रहे कि अर्ली डाइड, कह रही जो बच्चा जल्दी मर जाएगा। बी ऑल राइट नाउ, और सब ठीक ठाक हो। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और मैं सुन रहा था उस समय जब कोई कह रहा था कि चलो इसको लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पहुंचा। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था। एंड ट्रेमलिंग, और क्या, काँप रहा था, काँप रहा था। एंड क्राइड, चिल्ला रहा था डर से। When I lay on the bed, जब मैं बेड में पड़ा, आई कुड नॉट ईट दैट राइट नाइट, न उस रात में खा सका, न उस रात में सो सका। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट फॉर डेज, हॉन्टिंग फियर, और कई दिनों तक मुझे वो डर सताता रहा। रेज इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में वो डर बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, जरा सी भी स्लाइटेस्ट मुझे याद आती थी, मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी, विलियम डगलस इज सेइंग दैट he slight exertion upset to him and making him wobbly in the knee and sick to stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided whenever I could. William Douglas saying that he never went back to the pool. उस pool में दोबारा नहीं गया। He feared with water. Water से उसको डर लगने लगा। He avoided whenever he could. और जहाँ भी वो पानी दिखता था, उससे वो बचने की कोशिश, विलियम डगलस उससे बचने की कोशिश करते थे। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।